Hi students, today I am going to discuss on polynomials, class 9th, chapter 2. I will discuss on what is the definition of the polynomials, why we study polynomials, and the types of the polynomials. So I have already written the contents in this board, so you can look here. The definition of the polynomials first, types of the polynomials based on the terms, degree of the polynomials, and classification according to their degrees. After that we will discuss on the zeros of the polynomials, and most important things, remainder theorem, and last one, that is factor theorem, and some algebraic identities. So if you will study the algebraic identities, then you can solve your sums easily. So you have studied in 8th class also the algebraic identities. So one by one we are just going to discuss on it. So first of all, I am just going to tell about the definition of the polynomials. So my students, polynomials is an expression. Polynomial is an expression of two or more than two algebraic terms. Two or more than two algebraic terms that contains the variable. You have to know about the variable. What is variable? That are raised to non-negative integers. So you have to know about these two terms, non-negative integers and the variable. Algebraic terms you know very well. You have studied in class 8th. So polynomials is an expression more than two algebraic terms that contains variables. Variables means, suppose A, B, C, it means the value which is not satisfied in a single value. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ये 5x plus 1 है, ये 5x plus 1 in which x is a variable, right? So polynomials नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वाले वो एक्सप्रेशंस हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं, राइट? इसमें देख लो, दो टर्म है 5x plus 1, एक टर्म है 5x और दूसरा टर्म है 1. सो दिस इज कॉल्ड polynomials. 5x is one term and 1 is one term. So in which x is a variable and 1 is known as the constant term. There are two terms here. Similarly, in second example, x to the power 7 plus 2x4 minus 5x. In this polynomials, there are three terms: x to the power 7, 2x to the power 4 and minus 5x. There are three terms here. So you can say this is polynomials because all exponents are in positive form. Suppose if you are saying that x to the power 7, so 7 is पॉजिटिव इंटीजर्स. तो किसी भी पोलिनोमियल्स में उनकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगी. सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट ऑल द पावर्स शुड बी इन पॉजिटिव टर्म्स. अब इसी में एक एग्जांपल और ले लेते हैं. जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जांपल. जस्ट 5x to the power minus 2 plus 1. In this, the power is minus 2, power is minus 2, which is नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये नेगेटिव पार्ट है. मतलब 2 में माइनस लगा हुआ है, पावर में माइनस नहीं होना चाहिए पोलिनोमियल्स. सो आपको इस पे ध्यान देना है कि पावर में माइनस नहीं होना चाहिए.
So this is polynomials. अब है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. अब देखिए इसमें जो मैंने एग्जांपल दिया है इसमें दो टर्म है, इसमें 1 2 3 तीन टर्म. अब ये टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया, बांटा गया. पहला है मोनोमियल्स, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, जिसमें एक ही टर्म होता है. एक एग्जांपल ले लो, जैसे 5x है, 2y है, ये सब सारे मोनोमियल्स है, इसमें एक ही टर्म है. बाइनोमियल्स हैविंग टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म होते हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बता रहा हूँ. एग्जांपल ले लो. एग्जांपल में जैसे 2x plus 1 है. दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल्स बिकॉज इन दिस पॉलिनोमियल्स देयर आर two terms. First one is 2x and second one is 1. Trinomials having 3 terms, जिसमें 3 टर्म होते हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल इज सपोज x cube plus x plus 1. There are 3 terms, so you can say this is trinomials. Most important things जो आपके एग्जाम में, आपके पेपर में आ सकते हैं कि कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ये क्या होता है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का जो एग्जांपल हम ले लेते हैं. कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में सपोज आपने ले दिया 3. ये कांस्टेंट टर्म्स, इसकी वैल्यू फिक्स है. वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती. वेरिएबल की वैल्यू वो चेंज होता रहता है, बट इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, वो कभी नहीं चेंज होगा. दैट इज नोन एज द कांस्टेंट टर्म्स. इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. एग्जांपल से इसको इस तरह से समझते हैं. सपोज आई एम राइटिंग हियर द वन पॉलिनोमियल दैट इज 4x plus 5. In this polynomials 5 is known as the constant terms. Constant terms. This is constant. Or x is variable and the coefficient of x is 4. This is known as the coefficient. कुछ टर्म है जो आपने सीखना है. coefficient. Similarly, constant terms and last one is zeros polynomials, that is zero. Constant polynomial 0 is known as zero polynomials. अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल सपोज करो, कांस्टेंट में तो जीरो भी आ सकता है ना, तो जीरो को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलेंगे. ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जीरो इज नोन एज द जीरो पॉलिनोमियल्स एंड दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट टर्म्स. सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशंस. डेफिनेशंस में मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच हैज 2 or more than 2 terms. And the power should be always positive. वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स नहीं होना चाहिए. ऑलवेज कीप इन माइंड. जितने भी नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स है, सपोज करो अगर मैं लिख दूं 5x to the power minus 4, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज पावर इज नेगेटिव इंटीग्रल और ये पॉजिटिव नहीं है. सो यू कैन से दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. नाउ आई विल डिस्कस ऑन द थर्ड पार्ट, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो. राइट डाउन द डिग्री ऑफ अ टर्म इज अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर of the given polynomials.
इसको आप एक एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। सपोज दैट आई एम राइटिंग हियर एक्स क्यूब माइनस 9x क्यूब प्लस 2x टू द पावर 8 माइनस 6। दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें कोई भी पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं है। तो हाईएस्ट पावर इसका कौन सा है? हाईएस्ट पावर 8। सो दिस इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि डिग्री क्या होगा, डिग्री इज 8, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, राइट। अब इसमें कुछ एक दो चीज हैं जो आपको मैं इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखवा देता हूं। जस्ट राइट डाउन द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट polynomial is 0। फिर वही बात, नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब ऐसा कांस्टेंट जो जीरो नहीं हो। सपोज करो अगर 2 है या 3 है या 5 है, अगर आपको इसका डिग्री पूछे तो डिग्री क्या होगा? 0। डिग्री इज 0। इसे आप नोट्स में लिख लो, डिग्री इज 0, राइट। अब इसमें कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, बहुत अच्छी टॉपिक है। उसके बाद आ गया आपका डिग्री ऑफ 0, डिग्री ऑफ द जीरोस पॉलिनोमियल। ये आपने सीख लिया है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? द कांस्टेंट टर्म जीरो इज नोन एज द जीरोस पॉलिनोमियल, मैंने अभी बताया। अब डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब अगर जीरो की डिग्री अगर आपसे पूछा जाए तो नॉट डिफाइंड, आप इसे लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसमें पूछा जा सकता है कि जैसे 3 है, 3 का डिग्री क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? 3 का डिग्री 0 होगा। और अगर 0 की डिग्री बोले तो नॉट डिफाइंड। इन चीजों को आप एकदम लिख सकते हो और इसे ध्यान में रखना, बराबर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने आपको क्या पढ़ाया? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो माय स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। Classifications of the polynomials. Classifications of the polynomial according to their degree। उसके डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल्स को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। अभी भी मैंने क्लासिफाई किया था, दैट इज द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द टर्म्स। यदि एक टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। अब आपके दिमाग में कभी अगर ये आ जाए कि अगर 4 टर्म है तो उसे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो दिस ऑल आर नोन एज द पॉलिनोमियल्स। अब हम क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को इसके डिग्री के अकॉर्डिंग। अब देखो, डिग्री तो 1 भी हो सकता है, डिग्री की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? डिग्री 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अब जब डिग्री 1 हो, दिस इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल्स। जब डिग्री 2 हो, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। जब डिग्री 3 हो, दैट इज नोन एज द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। एक एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। लीनियर पॉलिनोमियल में एक एग्जांपल ले लेते हैं x माइनस 2। फिर मैंने आपको डिग्री की बात की थी। व्हाट इज द डिग्री ऑफ x माइनस 2?
द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर कितना है, x की पावर कितनी है 1 और 2 की पावर कितनी है, मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिग्री कितनी है, किसी भी कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो क्या होता है 0 होता है। अब बताओ इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इज 1, so this is known as the linear polynomial. Similarly, next example, one more example I am giving you, x square minus 3x plus 4. In this polynomials, the degree is highest power and positive. So always keep in mind, the highest power as well as the positive, that should not be negative. Non-negative integral power, non-negative integral power means positive power होना चाहिए. तो this is known as the quadratic polynomials. Similarly, one more example, x cube plus 3x minus 2. This is cubic polynomials because the degree is 3. Degree is 3. So you can say this is the cubic polynomials. Once again, I am just going to repeat you the linear polynomials in which the degree is 1, quadratic polynomials in which the degree is 2, and cubic polynomials in which the degree is 3. So, according to the degree, this is the classifications of the polynomials. Now, next point, इसको आप लिख भी सकते हो, पॉज कर लेना वीडियो को और इसको लिख लेना. Next one, I have already discussed you the degree of the polynomials, classifications according to their degrees. Next one, zeros of a polynomials, most important part. Zeros of a polynomial. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनाने को मिलेंगे, आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. लिखो a zero of a polynomial, a zero of a polynomial px is a number c such that pc is equal to g. अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, इसको अच्छे से हम समझते हैं. Now let's one example. Example is, I am giving one example to write down x square minus 2. Suppose this is x square minus 2. X square minus 2. Or x minus 2, keep it the x minus 2. The zero of the polynomials, question is the zero of the polynomials x minus 2. Zero is of the polynomial x minus 2 is 2. How is it possible? Let's x minus 2 is equal to 0. So x is equal to 2. X is equal to 2. So, zero of a polynomial px is a number c such that pc is equal to 0. अब अगर आप इस x के जगह पे इस 2 की वैल्यू रखोगे तो 2 minus 2 that is equal to 0. Since px is equal to 0. So this is the zero of the polynomials. एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप लिखते जाना है. सपोज करो अगर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4 का जीरोज निकालना है, फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4. कुछ नहीं करना है, दैट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 रखो. एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, माइनस 4 को उधर लेके जाएंगे लेफ्ट से राइट में, दैट बिकम्स 4. x इज इक्वल टू रूट अंडर 4 दैट इज प्लस एंड माइनस 2. यानी x की दो वैल्यू आ गई, एक x इक्वल टू 2
और दूसरा हो गया x इक्वल टू -2। इसको आप वेरीफाई करके दिखा देता हूँ आपको, वेरीफाई करके इसको मैं दिखा सकता हूँ आपको। सपोज कि x हमने लिया था x स्क्वायर -4, हमने दो जीरोज निकाला है, एक x इक्वल टू 2 यानी p2 अगर हम निकालेंगे तो 2 स्क्वायर -4 दैट इज 4 -4 इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर आप p -2 ले लो दैट इज -2 स्क्वायर -4, it also becomes the 0. So this is the process to find out the zeros of the any polynomials. So my students, I have already discussed the zeros of the polynomials. You have to just take care on it because the maximum questions are depend upon the zeros of the polynomials, and after that we will discuss the remainder theorem that is also based on the zeros of the polynomials. Now come to the next point, remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम में आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम में when a polynomial कोई सा भी एक पोलिनोमियल ले लो, एग्जांपल में सपोज करो दैट इज fx, ये एक पोलिनोमियल हमने ले लिया ऑफ डिग्री ग्रेटर देन वन और इक्वल टू 1। इस टर्म को समझना, या तो डिग्री 1 होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। कोई भी पोलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से बराबर हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो एक x -2 एक पोलिनोमियल से ले लिया जिसमें देख लो डिग्री 1 है। एक अगर हम दूसरा पोलिनोमियल से ले लें x स्क्वायर -4, इसमें देख लो डिग्री 2 है। यानी कहता है कि किसी भी पोलिनोमियल्स में जिसकी डिग्री जो है 1 और 1 के बराबर हो, अगर उसको इज डिवाइडेड बाय उसको अगर डिवाइड करें हम, किससे डिवाइड करें? डिवाइडेड बाय अ लीनियर पोलिनोमियल। किसी भी लीनियर पोलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करें, लीनियर पोलिनोमियल हमने पढ़ लिया, लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। वो लीनियर पोलिनोमियल सपोज करो x a है, तो पता है रिमाइंडर क्या होगा? द रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ए। रिमाइंडर जो होगा वो एफ ए के इक्वल होगा। मैं दोबारा इसको समझाता हूं कि किसी भी पोलिनोमियल्स को जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 हो या 1 के इक्वल हो, अगर आप उसको डिवाइड करते हैं किसी लीनियर पोलिनोमियल से, लीनियर पोलिनोमियल मान के चलो x -a से हमने डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर एफ ए होगा। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। उसको एक एग्जांपल से समझो। एग्जांपल से अगर आप इसको लिखना चाहते हो इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, राइट। सपोज एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इस एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करो कोई भी एक fx हमने ले लिया, ये पोलिनोमियल्स, दिस इज x³ माइनस x² प्लस 1। इसे अगर हम किसी भी एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करें, लीनियर पोलिनोमियल सपोज करो x प्लस 1, इससे हमें डिवाइड करना है, x प्लस 1 से हमको डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा? अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप सिंपली इस तरह से x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x³ माइनस x² प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड कर दो, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, 8th में पढ़ा था आपने। या नहीं तो आप क्या करो, पहले जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकाल लो, लीनियर पॉलिनोमियल्स पहले निकालो, जीरोज ऑफ गिवन लीनियर
पोलिनोमियल्स। x प्लस 1 को अगर हम 0 ले लें, x इक्वल टू कितना हो गया -1। अब f(x) जो दे रखा था आपका, वो क्या दे रखा है, x³ माइनस x² प्लस 1 दे रखा था। अब आप क्या करो कि ये जो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है -1, इसको यहाँ रख दो। सपोज करो ये एक मशीन है जिसमें x डालने से ये बनता है, तो -1 डालने से क्या बनेगा, -1 का क्यूब माइनस -1² प्लस 1, दैट इज -1 प्लस 1 -1 प्लस 2 -1। ये जो -1 है यही इसका रिमाइंडर है, दिस इज रिमाइंडर। अब आप अगर इसको डिवाइड भी करोगे, जब भी आपका रिमाइंडर -1 ही आएगा। एक बार मैं करके दिखाता हूँ। देखो x² है, x² से अगर हम इसको डिवाइड करें, दैट इज x³। ये आपने पढ़ा होगा 8th में किस तरह से डिवाइड करते हैं। ये -2x² प्लस 1, दिस इज -2x -2x² -2x प्लस कैंसिल 2x प्लस 1, दिस इज +2, दैट बिकम्स 2x प्लस 2 माइनस। देखो रिमाइंडर कितना आया -1। अब आपने डिवाइड किया, जब आपको पता चला कि रिमाइंडर -1 आया, और अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम लगा दिया जब भी आपने देखा -1 आया, इसलिए आपके काम को छोटा करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम बनाया गया है। इस एग्जाम्पल को भी आप नोट डाउन कर सकते हो, पॉज एंड नोट इट डाउन प्लीज। लास्ट टॉपिक अब हमारा चलता है सिमिलरली, दैट इज नोन एज द फैक्टर थ्योरम। माय स्टूडेंट्स, ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछा गया है। फैक्टर थ्योरम, लेट्स राइट डाउन द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, व्हाट इज दिस? इफ px is a polynomial, same polynomial of degree 1 or greater than 1, कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या फिर 1 से ज्यादा है, राइट, is divided by any real number, रियल नंबर आपको मैंने बताया था पहले, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर सबको पता होगा मेरी समझ से। रियल नंबर, ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, रियल नंबर, then x minus 1 is a factor of px if pa is equal to 0। प्लीज पॉज एंड नोट इट डाउन। इसको नोट कर लीजिए कि यदि किसी पोलिनोमियल्स px का जिसका डिग्री 1 और 1 से बड़ा है, अगर उसको किसी रियल नंबर से डिवाइड करें, देन x माइनस 1 जो होगा, इट इज द फैक्टर ऑफ px, उसका एक फैक्टर होगा। ये आपका फैक्टर थ्योरम है। एक इसको एग्जांपल से लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, f(x) को मान लेते हैं हम, कोई सा भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2, राइट। अगर इसको हम डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, किसी एक ऐसे वैल्यू से। सपोज करो यहाँ पर अगर हमने f के इसका हम कोई एक दो फैक्टर निकाल लेते हैं। सपोज करो यहाँ 2 रख लेते हैं। 2 रखा तो यहाँ पर क्या आ गया, 2² माइनस 3 × 2 प्लस 2, 2 × 4 माइनस 6 प्लस 2,
दिस इज 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। यही कर रहे हैं कि हमें 2 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है। 2 रखा तो इसकी वैल्यू देख लो, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0, रिमाइंडर आ गया आपका 0। अब जब रिमाइंडर इसका 0 आ गया तो इससे हमें क्या फाइंड आउट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने x के प्लेस पर क्या रखा था, x इक्वल टू 2 रखा था। अब आप 2 को इधर ले लो, यानी x माइनस 2 जो है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल fx, यानी fx का x माइनस 2 जो है ये एक पोलिनोमियल होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये फर्क है फैक्टर थ्योरम में और रिमाइंडर थ्योरम में। फैक्टर थ्योरम में यदि हम कोई सी भी कांस्टेंट वैल्यू उसमें रखते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लेना कि वो 0 जो है इसका एक फैक्टर है। दिस इज फैक्टर थ्योरम। इस तरीके से हमने फैक्टर थ्योरम भी पढ़ लिया। अब कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जो शायद आपने 8th में पढ़ा ही था। उस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को आप जरूर लर्न कर लेंगे। उसको लर्न करने से ही उसके जो सवाल है उस सवाल में अगर आप बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। कुछ है जस्ट राइट डाउन हियर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारी आइडेंटिटी आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये सारे आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। कुछ जो एक्स्ट्रा है वो है a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं और कुछ इस तरह से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। आपकी बुक में भी लिखे होंगे, वहां से भी आप लिख सकते हो। यहाँ से चाहते तो यहाँ से भी लिख सकते हो। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप इसमें बुक से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि यहीं से लिखना है आपने, वहां से भी आप लिख सकते हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और ये वाली जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इस तरह से आपका आइडेंटिटीज है जो आपने अपने रजिस्टर में नोट करना है और इसको याद भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज वाइज जो सवाल है वो बताएंगे और उस सवाल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं, फिर हम आपको पर्सनल भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय। अगर सही लगे तो जरूर इसे शेयर कर देंगे। थैंक्स।